my father started a bakery in Kalyan, तो वो rights में it went off, it was burned out. So 30 rupees also was a very difficult thing for us at that point of time. So I used to pack orders for Big Bazaar. तो वहाँ पे I got it as a stock boy. They were paying me around 1500 rupees as a first paycheck. तो फिर वहाँ से बाहर निकलते आई जस्ट बिफोर लिविंग आई स्पोक टू सिक्योरिटी आई सेड यहाँ पे कोई जॉब वॉब है क्या, तो ही सेड या है, आप कल आ जाओ सुबह 11 बजे इंटरव्यू देने के लिए, सेल चल रही है, वी नीड पीपल. एंड आई हैड डेट of 2.5 lakhs when I started this business. Now I have a debt of fucking 6 crores. ठीक है, so कर्जे से निकलने गया था और कर्जे में चला गया हूँ. अभी कंपनी मतलब क्या टर्नओवर करा लास्ट ईयर और अभी क्या एम कर रहे हैं इस साल के लिए? Then 2022 we did 6 crores. 2023 we did 18. Now last year we did 36. Now we are targeting at 72. So, hi Aditya, my name is Ashfaq and I am the director of Jibs India Systems Private Limited. This company started in 2019 practically, but we were in business since 2016 on a proprietary name of AP Enterprises. It was me and my wife's initials. So, never thought of getting here as a business, like creating a business so far. It was just to get a financial flexibility and freedom. That was the whole idea. And somehow we are here, so let's see. Because thank you so much for joining us No in this problem, thank you. podcast. So मैं पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपका बैकग्राउंड क्या था जिससे कि ऑडियंस समझ पाए कि आपने कैसे शुरू की इस कंपनी को? So I initially born and brought up in Kalyan. So in a family of 4 sisters, my father was a shopkeeper basically in town, and we were in a joint family. So that is where I was born in the 1990s, where my father everything was going good. But then after my birth, because my father was the eldest brother in the family, so we got into a family dispute about the stuff, normally जो होता है घरों में हमारे यहाँ. So that happened, and because of that my father faced a very financial unstable life, and then we went back to zero, and that is where I saw my father struggling to first he took care of his own family after my grandfather's death, where he helped his brothers to get married and all of that. So he did everything possible to build a good family. But then once, people grow up, they forget the good things that somebody has done for them. And then they had insecurities about me taking away everything that they had. So that was the problem. And वहाँ से मैंने देखा मेरे father, I was at around 8-9 years of old. So वहाँ पे मेरे father used to sell chappals on the street, street पे जो वेंडर्स होते हैं वैसे हैं, जस्ट टू फीड द फैमिली. सो वहाँ पे मैं हमारी स्कूल की छुट्टियों में जाता था. सो आई यूज्ड टू सपोर्ट हिम एंड वी अराउंड फॉर परचेजेस एंड ऑल ऑफ दैट एंड द सेल एंड एवरीथिंग. सो इट वाज गुड. आई यूज्ड टू एंजॉय इट बिकॉज एज अ चाइल्डहुड आई नेवर न्यू कि क्या है, कुछ नहीं है. आई वाज जस्ट डूइंग इट बिकॉज आई थॉट कि यार पैसे मिल रहे हैं और काम हो रहा है, मज़ा आ रही है, ठीक है. सो इट वॉज नथिंग शर्म कभी नहीं आई कुछ भी करने के लिए. Then slowly, gradually, once I started growing up, I saw the intensity because the needs were increasing, but the income was not, right? So my sister's getting married, and then my father started a bakery in Kalyan. So wo rights में it went off, it was burned out. So again we came back to zero. तो काफ़ी टाइम हमने जीरो का फिगर देखा है, राइट. सो बस उसके जीरो के आगे नंबर्स नहीं लग रहे थे. सो दैट वाज द होल आइडिया. वी वांटेड टू डू समथिंग. देन माय फादर स्टार्टेड टू वर्क in a local store, after that thing. Then suddenly in that store one day somebody came in and they knew my mother, and they were also on a similar lines where they had no money and anything. They were 4 brothers, but then they suddenly started working together. That was the when you together do Power something, of, right, yeah. So I saw that all the brothers worked hard and they built so much of amassing wealth. Today also they have done it. I will not name them, but yes, today also they are very rich kind of people. So they gave housing to a lot of families who couldn't afford it, and they were staying in far off places, which was a very noble job. And I would love to do it in case if I make that enormous amount of money, because I know how important it is. Today whatever I am possibly is because they gave us an opportunity to come here. They gave us the housing for free, almost free.
ठीक है, and I when I came here I did my 10th from Anjuman Islam because I was a very bad student, so nobody was giving me an admission in the school. So good school तो वो ही नहीं था, and I just wanted to get the certificate. Idea was कि कितना जल्दी बड़ा हो जाऊँ और कितने जल्दी पैसे कमाऊँ, बिकॉज मैंने यही देखा घर पे 20 रुपए मांगो तो 20 रुपए के लिए भी they were like वाई डू यू वॉन्ट इट, वॉट इज द रीजन. सो बचपन में फाउंटेन पेन आती थी, एक इंक पेन, सो वो 30 रुपए की हुआ करती थी उस वक्त. टुडे इट मे बी $300, राइट. सो 30 रुपीज ऑल्सो वॉज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर अस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो कि ये फालतू की पेन ले सकना है या फिर लाइक यू नो इफ यू कैन डू इट विद अ नॉर्मल पेन ऑल्सो डू इट दैट वे. बट एज अ चाइल्ड यू होते ना कुछ हाँ, सो desires मेरी होते मॉम हैं। मुझे ट्रैवल के लिए खाने के लिए स्कूल में पैसे देती, तो आई यूज्ड टू सेव इट एंड देन आई यूज्ड टू बाय इट ऐसे. फिर स्कूल में मैंने ये भी किया कि लाइक यू नो व्हेन आई वाज इन कल्याण, तो मुझे ऐसा था कि माय फ्रेंड्स यूज्ड टू हैव गुड, दे बिलोंग फ्रॉम अ गुड फैमिली, मतलब फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली. तो कैसा होता था कि आई यूज्ड टू टेक स्टिकर्स जो टेक्स्ट बुक्स पे हम चिटकाते थे पहले, लाइक यू नो द ब्राउन पेपर एंड दैट. So वहाँ पे ना, so there was a press who used to do cutting of stickers, like you know, so the end multicolored and radium stickers which used to Okay. glow in the night. Okay. So for them it was a cutting, like you know they used to throw it away. So I used to collect it from them rather than asking them to try, and they used to give it to me for free, and I used to sell it in my school for like you know 5 rupees for 20 30 ऐसे. तो वैसे मैं पैसे जमा करता था, and I used to use it for my own self only, घर पे नहीं देता था. Like for cycling, साइकिल मिलती थी रेंट पे 2 रुपए 1 घंटे के लिए. तो वैसे आई यूज टू सो रादर देन आस्किंग माई मदर फॉर द मनी कंसिस्टेंटली, आई थॉट ऑफ, बट शी ऑलवेज सपोर्टेड मी इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग. फिर वहाँ से यहाँ आए, कल्याण से स्कूलिंग की. Right. स्कूलिंग करने के बाद में पास हुआ मेरे फादर के साथ, मैंने शॉप ज्वाइन की. फिर वहाँ से माय फादर वांटेड मी टू बी अ लॉयर, बट मेरे को, मैंने लॉयर देखे थे तो अंधेरी के देखे थे. मतलब नॉर्मली एक वो यार नोटरी 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 चिल्लाने वाले, तो मुझे लगा यार लॉयर इज नॉट अ गुड प्रोफेशन टू बी एट इन इंडिया, बिकॉज यहाँ पे किसी की उसकी कोई वैल्यू नहीं. बट टुडे आई सी देयर आर गुड लॉयर्स ऑल्सो, बट वॉट आई सॉ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वॉज समवन who I didn't wanted to be, like you know, मेरे दिमाग में तो वही था, और मुझे पता था मेरी जो तरीके का करिकुलम है और मेरी जो एक्टिविटी इन वर्क है, मेरे को डेफिनेटली वही लॉयर बन सकता हूँ मैं. आई कैन नॉट बी like you know Ram, who Big is lawyers in India, the right. big lawyers kind of. Right. So वहाँ से फिर he got me admitted to a arts faculty. वहाँ मैंने गया, so again they were good people, like you know, who owning bikes, और वहाँ पे तो फैशन चल रहा था. लाइक स्कूल के कपड़े थे तो इतना पता नहीं चलता था. नाउ यू हैव टू वेयर योर ओन क्लोथ्स, अभी आपको खर्चे हैं यार ये. तो मैंने बोला यार मेरे से नहीं हो पाएगा. सो आई सेड टू माय फादर दैट आई कांट गो टू कॉलेज, आई वांट टू स्किप माय स्टडीज. तो मेरे घर पे बहुत हुआ कि नहीं नहीं ऐसा नहीं ये वो, एंड देन आई टोल्ड देम दैट आई विल डू इट प्राइवेटली, बिकॉज मुझे शर्म आ रही है यार, मतलब मैं क्या करूँ. Right. वो होता है कॉन्शियस, आई थिंक हाँ उस ऑफ एज में कोर्स होते हो आप. हाँ. राइट. तो ऐसा था. सो वहाँ पे देन आई स्टार्टेड टू वर्क इन अ लोकल शॉप. वो दैट वाज माय फर्स्ट जॉब. आई स्टिल रिमेंबर देम, आई गो एंड मीट देम आल्सो एट टाइम्स. तो वहाँ पे आई गॉट इट एज अ स्टॉक बॉय. उन्होंने मुझे ज्वाइन किया, मैंने उनको ज्वाइन किया, एंड दे वर पेइंग मी अराउंड 1500 रुपीज एज अ फर्स्ट पे चेक. सो इट वॉज अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. आई वॉन्टेड टू बाय अ फोन फॉर माई सेल्फ. तो मैंने अपनी फर्स्ट सैलरी से एक फ़ोन खरीदा, 3315. आई रिमेंबर दैट फ़ोन ऑल्सो टिल डेट. तो वो टाइम पे, आज गाड़ियों का शौक है, वो टाइम पे फ़ोन का बहुत शौक था. नोकिया वॉज ट्रेंडिंग, एवरी डे यू वर गेटिंग अ न्यू नोकिया मॉडल, एंड एवरी वन वॉज गुड, 6600 एंड ऑल ऑफ दैट. तो ऐसा था कि टारगेट था कि यार मुझे ना वो फ़ोन तक जाना है, N73, 25,000 रुपये फ़ोन तक लेना है मुझे. सो दैट वाज अ गोल. तो उसके लिए काम करता था, अपने शौक पूरे करने के लिए, ताकि मेरे को मेरे पेरेंट्स से कुछ नहीं लेना पड़े. एंड एंड आई डोंट वांट टू बी अ बर्डन ऑन देम, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो मेरे खुद के खर्चे के लिए मैं करता था, बाकी मेरे फादर एंड अदर एक्सपेंसेस वर टेकन ऑफ, बिकॉज माई ऑल माई सिस्टर्स वर ऑलमोस्ट मैरिड, एंड माई मॉम, मी एंड माई फादर वॉज देयर. देन फिर वहाँ से आई माई सिस्टर टोल्ड मी कि ना प्राइवेटली 12th दे दे एंड इट विल वर्क फॉर यू इन फ्यूचर. तो मैंने बोला ठीक है. तो फिर आई लेफ्ट माई स्टडी. सो बिफोर आई क्विटिंग आई वॉज मेकिंग अराउंड 4,500 रुपीज देयर विद इन अ स्पैन ऑफ 8 months, like 1500 to. So I was the highest paid employee there within a span of 8 months. So again, talent. बिकॉज ऑफ स्किल्स, राइट. Yeah, of course. I helped him make money. So I used to pack orders for
बिग बाजार. सो बिग बाजार में उनके पास पहले ऐसा होता था कि 6 महीने में एक ऑर्डर पास होता था. आई वर्क देयर फॉर अ पीरियड ऑफ 9 months एंड आई डिड 3 orders. सो एवरी क्वार्टर आई वॉज मेकिंग ऑर्डर्स. सो ऑब्वियसली इट वॉज प्रॉफिटेबल टू हिम एंड द इंटेंट वॉज टू जहाँ भी काम करो यार, दिस पर्सन हैज टू सी get a return on in his investment. I'm an investment for me. I believe if somebody is paying me for something, it is my duty to return it back multifold to him, right? So that is something because that is otherwise why will people hire you, right? तो वो चीज़ था. सो वहाँ से आई लेफ्ट माई स्टडीज एंड ही ऑफर्ड मी लाइक यू कम बैक एंड आई गिव यू 10,000 rupees. So I double the salary. So I said okay, I'll think of it. And then after my 12th, पता नहीं यार दिल, I was coming back from my examination and I was like in the heart I was like यार मेरे को वो नहीं करना यार. I don't feel like doing because I don't see any growth or सो वही थॉट प्रोसेस में आई वाज जस्ट सिटिंग ऑन अ बस स्टॉप में. बांद्रा उतरा. बांद्रा उतर के बांद्रा वाज माय फेवरेट डेस्टिनेशन. तो वहाँ पे उतर के आई वाज जस्ट सिटिंग ऑन अ बस स्टॉप. सो मेरा एक वहाँ पे फ्रेंड आया हु यूज्ड टू वर्क विद मी इन द प्रीवियस शॉप. सो वी वाज टॉकिंग एंड लाइक यार लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा, कुछ बड़ा करना है यार, समझ नहीं आ रहा कैसे होगा ये, दुकान में कब तक गाली खाएंगे और कब तक ये काम करेंगे. लाइक हाँ यार समझ नहीं आ रहा बट हमारे पास एजुकेशन भी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं बता. सो ये लाइक चल आज एक काम करते, डोंट गेट अपसेट, तेरा एग्जाम भी खत्म हुआ है. सो आई वॉज द यंगेस्ट अमॉन्ग ऑल, लाइक आई वॉज जस्ट 17, ठीक है. तो ही सेड लेट्स गो टू ग्लोबस. तो मैंने बोला पैसे नहीं है, पहली चीज़ है मॉल इतना बड़ा है और जिस तरीके के लोग उसमें दिख रहे जाते हुए, वी आर नॉट इवन अ मैच टू इट. तो क्यों अपनी बेइज्जती कराना. सो लेट्स नॉट गो. ही सेड आई हैव मनी, 2-3 हज़ार रुपये है, अगर कुछ हुआ तो वील बाई समथिंग ना, वील टेल देम दैट वी आर नॉट ऐसे. तो मैंने बोला ठीक है चल चलते हैं. सो वी वेंट देयर बट वो obviously subconsciously दिमाग में था यार, like you know, and everybody was looking at us in a way that we are coming from a very different background only. So instead of people taking us in a wrong way, I said like let's get out of here. And तो फिर वहाँ से बाहर निकलते आई जस्ट बिफोर लिविंग आई स्पोक टू सिक्योरिटी गार्ड. सेड यहाँ पे कोई जॉब वॉब है क्या. तो ही सेड या है, आप कल आ जाओ सुबह 11 बजे इंटरव्यू देने के लिए, सेल चल रही है, वी नीड पीपल. तो मैंने बोला ठीक है. सो नेक्स्ट डे 11 o'clock आई वेंट देयर. वहाँ पे मुझे एक फॉर्म दिया भरने के लिए, सारी चीज़ें आई डिड दैट. दे मेड मी वेट फॉर लाइक 4-5 hours एंड देन दे केम इन फॉर एन इंटरव्यू एंड दे सेड के विल थिंक अबाउट एंड लेट यू नो. मुझे लगा नहीं होगा. So मैंने चलो ठीक है कोई बात नहीं, बट आई वॉज वेटिंग फॉर इट. मतलब एक था कि नहीं होगा बट दिल में था कि हो जाए, तो वैसा था. सो दो मैं आई गिव एन इंटरव्यू ऑन अ वेडनेसडे एंड थर्सडे फ्राइडे हो गया था. माई मदर ऑन अ सैटरडे इवनिंग शी वॉज टेलिंग मी लाइक कि देख मंडे से ना यू नीड टू गो बैक टू वर्क, ही इज़ पेइंग यू वेल एंड इज़ कॉन्स्टेंटली कॉलिंग योर फादर कि कहाँ है ऐसे. तो मुझे जाना नहीं था. मैंने मेरी मॉम को बोला था. मेरी मॉम ने बोला कि बॉस यू डोंट हैव अ चॉइस बिकॉज यू आर मेकिंग गुड मनी एंड नाउ यू नीड टू सपोर्ट द फैमिली एंड यू हैव बीन डूइंग दैट. तो ऑब्वियसली शी वॉज राइट, ठीक है. बट मुझे वो नहीं करना था, मुझे कुछ और करना था, बस ऐसा था. आई वॉन्टेड टू वर्क, ऐसा नहीं कि मुझे काम नहीं करना था. मुझे पता था मुझे काम नहीं करूँगा तो कुछ मिलेगा भी नहीं. तो suddenly Sunday morning and I was just sitting and I was like, you know, I saw in the sky and I just randomly ऐसे ही बोल दिया ऊपर वाले को यार मेरी ज़िंदगी में यही है क्या. एंड आई जस्ट भूल गया मैं करके. इट वॉज संडे मॉर्निंग. आई नेवर थॉट कि संडे मॉर्निंग कोई कंपनी कॉल करती है किसी को इंटरव्यू के लिए. आई गॉट अ कॉल एंड ही सेड दैट कैन यू कम इन इमीडिएटली, वी वांट टू टॉक टू यू. आई सेड ओके. अब मैं गया तो वहाँ पे दे सेड के वी विल गिव यू $3,000 which is like 1/3 of what I was about to get paid. And he said that it will be a temporary job. After 3 months, if your work is good, then we will put you as a permanent employee. मैंने बोला यार चांस तो लेना है, देखना तो है कि यहाँ पे क्या होता है. दिस अ डिफरेंट लाइफ ऑल टुगेदर, ठीक है. तो मैंने बोला पैसे की बात तो है नहीं, 10,000 तो वहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे कभी भी, बट ये एक ट्राई लेना बनता है. तो आई जस्ट ट्राइड. आई सेड ओके वट एवर इज दैट. फिर वहाँ पे मैं फर्स्ट डे एंटर किया. इट वॉज अ वेरी डिफरेंट प्लेस ऑल टुगेदर, लाइक यू नो मोर ऑफ रूल्स पॉलिसीज SOPs सिक्योरिटी ये वो. सो इट वॉज लाइक अ डिफरेंट ऑल टुगेदर. इट वॉज आई थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा था. इट वॉज लाइक मोर और लेस आई वॉज लुकिंग लाइक मैं जेल में एंटर कर रहा हूँ यार. लाइक टू मेनी फ़ोन जमा करो, ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, यू हैव अ ब्रेक टाइम एंड ऑल ऑफ दैट. बट स्टिल आई वांटेड टू डू इट बिकॉज आई वांटेड टू नो कि डिसिप्लिन में भी काम करना क्या होता है यार. तो वहाँ से आई एंटर्ड. आई मेट अ कपल ऑफ पीपल टुडे. वन ऑफ देम इज माई ऑपरेशंस मैनेजर, द फर्स्ट गाय आई मेट इन दैट शॉप who helped me to sustain in that place. Who was like there were, and if you go to big organizations or any organization, you find a lot of bullies who are
और वो टाइम पे बहुत होता था, आज तो नहीं होता, टुडे पीपल हैव गॉट मोर एजुकेटेड, वो टाइम पे कैसा होता था, पीपल जस्ट वांटेड टू इंटिमिडेट यू, दे वांटेड टू टेस्ट यू, एंड देन देयर वर ग्रुपिज्म, वो सब होता था. So he was the guy who helped me. So today he's working with me. I am giving him the responsibility to manage the entire Bombay business, which is about to go for around 60, 70 crores. So he also grew in his life. He also had a very struggling life. So we relate to the story. So I'm looking to connect to people from my previous organizations who actually supported me in my bad times. Okay? So I know these are good people, right? Not everybody does that when you are at a good place. तो वहाँ से ही सपोर्टेड मी, मैंने सीखा. एंड आई सेड कि यार यहाँ पे ओनर किधर है, बिकॉज लास्ट जितनी भी दुकानों में काम किया मैंने, आई सॉ के ओनर्स होते हैं दुकान पे, कैशियर. हमारे यहाँ पे तो मैंने ये देखा था कि कैश काउंटर पे तो मालिक को ही बैठना है. तो आई सेड यार, तो बोले वो तो यूके में है. सो आई सेड इतना बिजनेस है, इतना सारा सामान चोरी हो गया था. तो बोला अरे भाई ऐसा नहीं होता चोरी, सो देयर इज अ प्रोसेस नॉलेज. मैंने बोला यार लाइफ में कभी भी करूँगा ना, कुछ भी करूँगा ऐसे ही ऐसे ही करूँगा, करूंगा. ठीक है, कि मेरे को नहीं रहना पड़े. हम्म. ठीक है, बिकॉज दैट वाज समथिंग विच ऑड मी, लाइक कि यार सीरियसली दैट गाय. और एक नहीं दुकान है यार, 10 दुकान है, ठीक है, एंड कैश काउंटर पे इतना कैश आ रहा है. देन एंड उसके बाद में मैंने फर्स्ट चीज़ देखी कि एक बंदा वहाँ पे कॉर्नर पे रह के ना सबको देख रहा है, और ही वॉज लाइक गिविंग वर्क टू एवरी वन. मैंने बोला यार ये कौन है. ही सेड ही इज अ सुपरवाइजर. मैंने बोला पहले ये बनना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत काम दे रहा है, मुझे काम देना है, मुझे काम करना नहीं है यार, ठीक है. सो दैट वाज द होल आइडिया. सो मैं I started making friends with the people who are above my level, so that the learnings are also higher over there. तो वहाँ से, and obviously I always grab attention to my work through my work, like काम से आपकी जो पहचान है ना, वो आपको बातों करके नहीं मिलेगी कभी भी. वहाँ से मैंने वो सीखा. फिर वहाँ पे एक दिन नया ब्रांड आया था, गास करके, जो मैं बोल रहा था वो. सो दैट वाज एन इंटरनेशनल ब्रांड. और आई ऑलवेज वहाँ पे एक था कि यार आई वांटेड टू वर्क फॉर दैट कंपनी. सो आई थॉट मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आई वॉज नॉट श्योर. तो एवरीबडी वॉज बिहाइंड दैट कंपनी के जो मैनेजर था उसके पीछे कि यार मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, वॉट ऐसे. सो दे वर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस हिम, एंड ही वाज लाइक ऐसे. सो आई ऑल्सो मेड अ ट्राई. मैंने बोला सब बोल रहे हैं तो मैं भी एक बार पूछ ही लेता हूँ इफ देर इज एन ओपनिंग. सो ही स्पोक टू मी एंड ही सेड नो, देर इज नो ओपनिंग राइट नाउ, एंड इफ देर इज एनीथिंग आई विल लेट यू नो. आई सेड ओके, नो प्रॉब्लम. तो मैंने छोड़ दिया, एंड नेक्स्ट डे इट वाज अ बैक टू नॉर्मल जॉब. आई वाज डूइंग अ फर्स्ट शिफ्ट. 11 o'clock इन द मॉर्निंग आई एंटर्ड माय स्टोर एंड आई गॉट अ कस्टमर. तो मैं कस्टमर को अटेंड कर रहा था. सो आई दिस ब्रांड वाज अमॉन्ग द मास ब्रांड्स. आज जो मास ब्रांड्स है लाइक स्पाइकर, पेपे, ली, किलर, रैंगलर, ऑल ऑफ दिस, तो वो टाइम के वो प्रीमियम ब्रांड्स थे. आज ये मास कैटेगरी में है, बट दैट टाइम इट वाज अ प्रीमियम ब्रांड्स दे वर. एंड लिवाइस वाज द ओनली ब्रांड विच वाज द प्रीमियम ब्रांड. लिवाइस पहना है तो अमीर है बंदा, दैट वाज द होल माइंडसेट. और उसके बीच में गास एंड टॉमी हिलफिगर जैसे ब्रांड्स का आना, इट वाज लाइक बियॉन्ड लिवाइस, ठीक है. तो दैट आई वाज अटेंडिंग दैट कस्टमर एंड आई टुक हिम टू दैट काउंटर एंड सेड लाइक गैस क्या है यार, मतलब आई हैव नेवर हर्ड ऑफ इट. आई टोल्ड हिम अबाउट इंटरनेशनल ब्रांड है एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई गिव हिम अ फिट टू ट्राई एंड स्टफ लाइक दैट. ही लाइक्ड इट. और फर्स्ट जीन्स उसने सारी जीन्स खरीदी. अराउंड ही बॉट अराउंड 10-12 डेनिम्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड आई सोल्ड हिम दैट डेनिम ऑल्सो. तो आई सोल्ड हिम अ कपल ऑफ टी शर्ट शर्ट्स ऑफ दैट ब्रांड. मैंने वो सब बिलिंग हो गया. बिलिंग होने के बाद मैं जस्ट ट्राइंग टू क्लियर ऑफ द extra clothes that he was shown, like you have to keep it back in the racks and everything. So suddenly I got a tap on my back and he said, and I saw that guy yesterday who I spoke to, and he was like, I was watching you constantly and you really did a very good job. And his name was Ashwin Jatan. Today he's owning his own company. I'm following him on LinkedIn. So he told me, यार तुम बहुत अच्छा काम किए, and I want to see you in my office tomorrow at 11 a.m. And I was like, यार चलो काम हो गया. अगेन आपने जो बात बोली ना कि पहले दो, तो हाँ. आपने मतलब भैया आप बहुत अच्छे से ईमानदारी से काम किया, तो आपको हाँ. उन्होंने देखा. हाँ. तो वो आई थिंक ट्रू है कहीं ना कहीं. अगर आप देते हो विदाउट एक्सपेक्टेशन तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलता है. हाँ. So it was my job. मेरे को बेचना था. It was my target. I was not doing it for a job. मेरे को पता भी नहीं था कि वो खड़ा है. So I was doing it कि मैं इसको बेच पाता हूँ कि नहीं बेच पाता हूँ, because that was the starting price of denim was 3,500. एट दैट टाइम. That was starting price in 2008 I'm talking about. और वो उस वक्त आप देखोगे तो 7 की बात कर रहा हूँ, 8 भी नहीं, 7 की बात कर रहा हूँ. 7 में 3,500 रुपए की जीन्स कौन पहनता था यार. मतलब मैंने तो वहाँ पे आई वॉज लाइक, मेरे को बेचना था कि मेरे को खुद की काबिलियत के करना था कि यार मैं बेच पाता हूँ कि नहीं बेच पाता. 3,500 रुपए की जीन्स अगर मैंने बेचा तो फिर मैं कुछ भी बेच सकता हूँ. दैट वॉज द होल गोल, ठीक है. तो आइडिया वॉज दैट ओनली टू
build confidence in my own self. तो वो उससे मुझे नेक्स्ट डे गया, आई गॉट दैट जॉब एंड देन वहाँ से माई अर्निंग अगेन वेंट टू, मैंने 8 महीने का जो वहाँ पे मुझे 10,000 मिलने थे, मुझे यहाँ 12 मिल गए. It was just a matter of 8 months, and within 8 months, but I learned a lot of things. I opened multiple stores for Globus. I was known at the level of vice president because I was working in visual merchandising and all of that. मेरे को color coordinations, helping people get to style. Like, I love to dress up and help people get into that style mode because मैंने किया है stylist, like what shoes you should wear, what is the winter color, summer colors क्या होते हैं, what is the bottom top combination क्या होनी चाहिए, how do you need to present yourself to, so वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे सीखी, and that is how it shaped me as a person, that कि how important power dressing is, to be very honest. वो आई थिंक यहाँ पे मैं सॉरी कट कर रहा हूँ आपको, बट क्या वो आपने जो डिसीजन लिया कि वहाँ पे शॉप पे काम नहीं करना है, क्या मतलब आपको पता था कि आप ग्रो नहीं कर पाओगे उस शॉप में ज़्यादा, इसलिए लिया? हाँ राइट. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप हमेशा से, आपको ये था कि सीखना हाँ है ना, आपको पता है शॉप में आपने सब कुछ कर लिया, अब कुछ सीखने के लिए नहीं है और कुछ नहीं है. तो इसीलिए आपने सोचा कि भले ही कम पैसे मिले बट लेट्स स्टार्ट हियर, कि यहाँ पे कुछ सीखने को मिलेगा. करेक्ट. आई थिंक ये मेंटालिटी काफी इंपॉर्टेंट होती है सीखने हाँ. वाली. It is always about you should have a learning mindset. If you have a earning mindset only, you will never grow. ठीक है, क्योंकि आपको पैसा जब मिलता है जब आप कुछ सीखते हो या आप किसी चीज़ से के लिए मैटरफुल काम करते हो, यू नीड टू ब्रिंग वैल्यू आउट ऑफ एवरीथिंग. ठीक है, कोई भी चीज़ अगर मैं आपको बोलूँगा कि खरीदो, आप नहीं खरीदोगे. क्यों नहीं, क्यों खरीदोगे? राइट. इफ देर इज सम वैल्यू एडेड टू इट, डेफिनेटली इट्स अ पॉकेट फ्रेंडली, इट इज ईजी टू यूज, इट इज, सो वो चीज़ बिकती है. ठीक है, एंड यू नीड टू सेल इट ऑन अ मास लेवल. दैट इज द ओनली, ऐसे चीज़ लाओ जो सबके काम आए. ठीक है, सो दैट इज व्हाट मेक्स यू रिच. ठीक है, इफ यू आर एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम फॉर अ मास crowd, you will definitely make money. ठीक है, आज today my favorite brands like Zomato, my favorite brand, to be very honest. The reason why is because I used to see Zomato like 2009-10 में मैं देखता था Zomato, but it was a rating company like Just Dial. ठीक है, मैं कोई भी छोटे से छोटे रेस्टोरेंट में ना Zomato लिखा होता था, मैंने इसलिए कि Zomato क्या है यार, पता नहीं, बट उनका ब्रांडिंग है ना पहले से ही कैची था from a very start. ठीक है, and then when I got to know about Dipender Goyal's story and stuff like that, how he started, obviously he saw that opportunity. He didn't thought of कि Zomato बनेगा, to be very honest. उसने देखा कि यार लाइन में खड़े, ब्रेक टाइम कम है, he tried to save time for many. ठीक है, that was the whole idea, saving time for people. Suddenly it became a business because, so that is how you need to help people to get something, like either you are saving time for them, convenience, cost, money, cost of money, everything, lot of things are matterful. Uber आया, Uber actually help people to get to 1.2. So I used to use tap cabs. एक टाइम था जब मैं करता था, तो it was very difficult to get taxis, समझ रहे हो. So when Uber and Ola came in, they actually gave that habit to people कि यार तुम्हारे डोर स्टेप से तुमको एसी गाड़ी लेके जा रही है, एंड दैट वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी न्यू टू. और इतनी सर्विस की हमें आदत नहीं थी यार इंडियंस को, हमें रिजेक्शन की आदत थी, हमें एक्सेप्टेंस की आदत ही नहीं थी. हमें पता था रिक्शा के लिए बाहर जाएंगे तो 10 बार तो ना हैगल बोलना है. करना पड़ेगा ये भी कि करेक्ट, प्राइस का हाँ भी. हाँ राइट, हाँ, और 5 किलोमीटर तो चलना ही है मतलब उसके अंदर. ठीक है, तो रिक्शा का बिल तो ऐसे ही बचने वाला है. But somebody coming to your doorstep, opening door for you, making you sit, and he's charging you even lesser than an auto. Like fucking, it was like a miracle for people, right? So that is how it's awestruck. वो it होना ही था वो. ठीक है, so that is how it is. So coming back to story, so फिर वहाँ से GAS से मैंने join किया Vanusen as a brand. फिर वहाँ से within 6 months I got an opportunity from a brand from Arvind Brands like Arrow say. So I was 21 at that point of time, and I was the youngest manager. I was selected as a manager. तो जब मैंने स्टोर ज्वाइन किया तो वो स्टोर कर रहा था कुछ 7 लाख रुपए का सेल, और उसका रेंट था 9 लाख रुपए, एंड वी वर एम्प्लॉइज एंड एवरीथिंग. सो वो टाइम पे समझ आ गया कि यार कंपनी को लॉस हो रहा है, रेंट कब तक चलेगी, and how much somebody will pay you in losses, right? So it's no point, and you are been here for some reason, like they want to see you growing, और ये opportunity है. अगर इसको आपने टर्न अराउंड कर दिया, आप कंपनी के लिए छोड़ दो, आप अपने लिए भी समझ लो कि आप कुछ भी कर सकते हो. तो that was the thing, and 2 months down the line we were doing 34 lakhs in sales, like 3x. Company was profitable, everything. So मेरा मैनेजर आके मुझे बोलता है यार I'll take you for a dinner, you like all of that. But what happened was कि because I was the youngest guy and there were multiple outlets, and this was something everybody wanted to be a part of it, but nobody got it, and I was an outsider. तो मेरे से पुराने एक्सपीरियंस लोगों को अच्छा नहीं लगा कि like कॉर्पोरेट में होता है.
So they started to like वहाँ पे issues हुए and then somebody played a role where मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम वगैरह लगा दिया लोगों ने and then I was audited everything. I was clean. I was not worried about it, but I thought my boss would understand me. Of course, he had a job responsibility to get it checked and everything. But the way I was treated at that point of time was something which I didn't like, and I said कि यार नहीं करना मुझे. It was something which I really hurted me at that point of time. क्योंकि I did everything possible in order to make that store. It was not. I was not considering myself as an employee. मैंने 36 घंटे काम किए थे वहाँ, like for audits and all of that, for customer and all. So वो सारी चीज़ें थी. एंड इट वॉज ओके, नो प्रॉब्लम. सो वहाँ से आई लेफ्ट इट एंड आई वॉज नॉट अवेयर कि क्या होगा. दे डिडंट सैक मी, बट मुझे लगा मेरी जॉब चली जाएगी, मतलब है ना. और अगर नहीं भी गई, सो आई डोंट वांट टू बी अ प्लेस वेयर यू हैव बीन लाइक राइट डिसरिस्पेक्टेड राइट. ऐसे. सो यू आर नॉट ट्रस्टेड, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो फिर मैंने सोचा कि यार नहीं, ये नहीं करना, अभी कहीं और चलते हैं. एंड देन पता नहीं, आई केम फ्रॉम बैंड्रा टू जोगेश्वरी, इट्स लाइक 16 किलोमीटर्स जस्ट वॉकिंग. मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं मेरी लाइफ में क्या होने वाला है, और मैं घर पे जाके बोल भी नहीं सकता. तो आई वॉज जस्ट सिटिंग. नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने मेरे दोस्त को एक को फ़ोन किया. मैंने बोला यार मुझे ऐसे हो गया मेरे साथ, एंड आई रियली नीड अ जॉब एंड आई नीड अ जॉब टुडे ओनली. तो ही सेड यार ऐसे कैसे मिलेगी पता नहीं, बट लेट्स गो. तो बोला कॉल सेंटर ट्राई करते हैं. तो मैंने बोला ठीक है यार कॉल सेंटर ट्राई करते हैं. कॉल सेंटर में गया. आई गॉट सिलेक्टेड फॉर सिटी बैंक VNA, सिटी बैंक सनशाइन प्रोसेस था TCS में, पीछे नेस्को में. बट इंग्लिश वॉज पथेटिक, क्योंकि वहाँ पे यू आर वर्किंग इन US प्रोसेस फॉर अ बैंक लाइक सिटी बैंक. यू नीड टू बी अ वेरी गुड कम्युनिकेटर. सो द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश आर वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल ऑफ दैट. तो वहाँ जाके इंग्लिश का मतलब समझ आया कि यार कितनी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश. ठीक है, इन लाइफ लाइक वी वर नॉट गिविंग एनी ऑफ इट, बट उसको ध्यान नहीं दिया जा रहा था. बट इट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इफ यू, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लिविंग, लाइक पीपल वर जस्ट मेकिंग मनी बाई स्पीकिंग गुड इंग्लिश. ठीक है. तो बट आई गॉट रिजेक्टेड ओवर देयर इन माई VNA, एंड वहाँ पे फिर मेरी नौकरी चली गई. लाइक क्या हो रहा है मेरे साथ, समझ आया. इट वॉज अ बैड टाइम. फिर देन आई जॉइन 3G में मैंने ज्वाइन किया. आई क्लियर्ड माई VNA, आई क्लियर्ड माई, वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन प्रोसेस था. सो ऑस्ट्रेलिया में मोर और लेस देयर आर इंडियंस, सो यू आर नॉट वेरी नीडेड टू स्पीक अ वेरी गुड ग्रामर वाली इंग्लिश. So I got selected, and like वहाँ पे उनको चाहिए someone who can talk effectively and he's able to have a good explanation, because we were supposed to explain telephone bills to the consumers for the data, and that time data was new and it was expensive. People were using it like anything ऐसे. तो फर्स्ट डे ऑफ माई जॉब, मतलब 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद में व्हेन आई गॉट ऑन टू द फ्लोर, वो होता है उनका ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, OJT बोलते हैं जिसको. सो वी वर टेकिंग लाइव कॉल्स, और फिर लाइव कॉल में मुझे पता नहीं था. फर्स्ट टाइम आई वाज हैंडलिंग अ सिस्टम, काइंड ऑफ कॉलिंग सिस्टम एंड ऑल ऑफ दैट. तो उसमें एक टैब था जो डायलर होता है, एंड देन देर इज़ अ स्क्रीन बिहाइंड. सो डायलर पे आई वाज, देर इज़ अ 4 कीज, रेडी एंड साइन ऑफ एंड ऑल ऑफ दैट. और वो डायलर पे मेरे रेडी पे ना, इट वाज स्टक एंड आई डिडंट सी इट. तो अब क्या हो रहा है कि मैं जब भी बिल खोलने की कोशिश कर रहा हूँ एंड आई एम एंटरिंग इट, द डायलर इज टेकिंग अनदर कॉल, द कॉल्स आर गेटिंग जम्प्ड एंड somebody is tracking me over there. अब मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, आई वाज आल्सो नॉट श्योर कि यार आई एम टॉकिंग टू समवन एंड सडनली देयर इज अ न्यू पर्सन कमिंग ऑन द बोर्ड. तो मेरी स्क्रीन बार बार फ्लिप हो रही है. तो आई वाज लाइक कुछ तो गलत हो रहा है. एंड देन इमीडिएटली माय ट्रेनर केम इन एंड सेड कि वी वांट टू टॉक, एंड शी थॉट आई वाज डूइंग इट ऑन पर्पस. शी इज स्टिल अ फ्रेंड ऑफ माइन, वी आर वेरी गुड फैमिली फ्रेंड्स. ठीक है. तो मैंने उसको एक ही चीज़ बोला, मतलब आई टोल्ड हर एंटायर थिंग. मैंने बोला सी आई एम नॉट डूइंग इट पर्पसली, मेरे को खुद को नहीं समझ आ रहा कैसे हो रहा है, देयर इज सम मिस्टेक, आई जस्ट वांट वन ऑफ. सो शी लाइक नहीं. एंड आई टोल्ड हर गिव मी वन चांस, इफ आई डू इट रॉन्ग, इफ यू कैन गिव मी 1 week, इफ आई एम डूइंग रॉन्ग यू हैव ऑल द राइट्स, आई विल ओनली नॉट कम. ठीक है, बट डोंट फायर मी, गिव मी वन चांस, आई नीड दिस जॉब. So she was like a good human, and she is a good human. So she said, okay, no problem, I'll give you one chance. उसने मुझे दिया chance. Her name is Sudha. तो वहाँ से आई नेवर डिसअपॉइंटेड हर. एंड मी एंड माई वन ऑफ माई फ्रेंड भरत करके, ही इज़ इन US राइट नाउ. तो हमने वी टर्न अराउंड द स्पेस. ही सपोर्टेड मी, ही हेल्प मी अ लॉट टू सर्वाइव इन दैट स्पेस. एंड within 3 months we were the floor worker, we were training people. Okay. Right. So that was the whole change that happened, and within a span of 2.5-3 years I was taking supervisor calls and everything. But मैंने देखा यार बहुत लंबी लाइन है यहाँ, लोग काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रोथ नहीं आने वाली. और मैं थक चुका था. लाइक इट वाज लाइक यू वर वर्किंग राउंड द क्लॉक, देयर इज नो टाइमिंग, देयर इज नो लाइफ स्टाइल, कुछ भी नहीं. आप कभी रात के 12 बजे काम कर रहे हो, कभी रात के 3 बजे काम कर रहे हो. सो इट वाज लाइक हेल्थ इश्यूज,
माई पर्सनल लाइफ वॉज गोइंग फॉर अ टॉस एंड एवरीथिंग वॉज, सो मुझे वापस कुछ चाहिए था. तो वन डे माई फ्रेंड कॉल्ड मी, ही सेड कि ना एक जॉब अपॉर्चुनिटी है, रिटेल में करेगा क्या? एंड आई वाज लाइक मेरे को मिलेगा क्या? सो ही सेड ट्राई कर लेते हैं. सो आई वेंट फॉर एन इंटरव्यू एंड इट वाज अ कॉस्मेटिक ब्रांड कॉल्ड क्लिनिक. तो वहाँ मैंने जाके इंटरव्यू दिया एंड द मैनेजर इज स्टिल अ फ्रेंड अगेन. पूजा करके एचआर थी, उसने मेरा इंटरव्यू लिया एंड देन शी सिलेक्टेड मी. और फिर वहाँ से आई नेवर न्यू मेकअप, मतलब लिपस्टिक क्या होती है, आईलाइनर क्या होता है, वी डोंट नो एनीथिंग एनी ऑफ दैट स्टफ. तो मैंने मेरा इंटरव्यू, माई ट्रेनर आस्क्ड मी विल यू बी एबल टू डू अ मेकअप? आई सेड इफ यू कैन टीच मी आई विल डू इट बिकॉज आई नीड दिस जॉब. ठीक है, एंड दे वर पेइंग गुड. तो और मुझे ऐसा लगा था कि मेरा एंट्री स्पेस है. आई विल कम बैक टू रिटेल बिकॉज रिटेल इज ऑलवेज अ बूमिंग प्लेस टू बी एट. तो मैंने बोला आप जो सिखाओगे मैं सीख लूंगा एंड आई विल डू इट, आई नीड द जॉब, दैट्स व्हाट आई वांट. सो दे सिलेक्टेड मी, दे सेड वी विल गिव यू अ स्टोर इन थाने. सो दे गिव मी अ सी कैटेगरी स्टोर. मतलब उनको लगा कि यार वो स्टोर वैसे भी चल नहीं रहा है, हमें बंदा तो चाहिए ही, तो चल जाएगा, ठीक है. अब आई गॉट हायर्ड, आई गॉट ट्रेन्ड एंड दैट स्टोर विद इन 6 months इट वेंट फ्रॉम सी कैटेगरी टू ए कैटेगरी स्टोर. जो स्टोर 2.5 लाख नहीं कर रहा था, दैट वॉज डूइंग 10 lakhs a month. So it became an important door for them, and that is how I was the highest paid employee within the very first year. I got the highest increment of 15% at that point of time, and my bosses were happy, and they said that we will shift you to the nearest store from your house. तो वहाँ से I got shifted from Thane to Juhu. Again worked the talent and everything. I thought of the company. मेरे को पैसा मिल रहा है, मुझे I cannot be in the low ball area. अगर मेरे सामने, I always take the, I want to set benchmarks. That's the only simple thing in my life. काम ऐसा करो ना कि तुम्हारा नाम लोग जानना चाहिए तुम्हारे काम से, वो बातों से नहीं जानना है. वहाँ से आई गॉट बैक टू जुहू. जुहू में आई मेट माई वाइफ, लाइक शी इज़ माई वाइफ राइट नाउ, सो शी वॉज माई कलीग. तो वहाँ से वन डे आई वॉज ट्रैवलिंग एंड आई सॉ एड ऑफ ऊबर का ऑन द बस. तो वहाँ पे क्या यार 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, यहाँ पे हम 35 में घसवा रहे हैं. तो राइट, वो तो लगता है कि हाँ यार ठीक हाँ नई अपॉर्चुनिटी है। हाँ, तो और गाड़ी चलाने आती थी, तो आई थॉट कि चलो ट्राई करते हैं ये वैसे से. सो देन आई स्टार्टेड टू कलेक्ट कूपन्स, ऊबर के कूपन्स कलेक्ट किए बहुत सारे नंबर से, यहाँ से वहाँ से, एंड आई स्टार्टेड यूजिंग द सर्विस. सर्विस यूज़ की, लोगों से बात किया. सो ड्राइवर्स आर सेइंग कि यार 1.5 लाख रुपए बनता है, 2 लाख आएगा. लाइक फक, बहुत अच्छा पैसा बन रहा है यार, मेरे को भी करना है. बट आई डिडंट वांटेड टू क्विट माय जॉब बिकॉज आई न्यू दिस इज टेम्पररी. वन थिंग इन द बैक ऑफ माई माइंड कि एक टैक्सी ड्राइवर 1.5 लाख रुपए कभी नहीं कमा सकता. इफ इट इज हैपनिंग राइट नाउ, इट्स आइदर अ स्कैम. ठीक है, नंबर वन, या तो ये कुछ है, बट देर इज समथिंग देयर, बट यू शुड नॉट बी रिलाइंग ऑन इट 100%. हाँ, अगर मिल रहा है, बहती नदी है, तो पानी निकाल लो जितना निकाल सकते हो, ये मौका है, बस वो कर लो उतना. दैट वॉज द होल आइडिया. और मुझे पता था कि मेरे पास 2.5 लाख 3 लाख रुपया मेरा कर्जा है, मेरा पेचेक टू पेचेक चल रहा है. अगर मैंने 6 महीने 8 महीने भी ये काम कर लिया तो मैं जीरो डाउन हो जाऊंगा. एंड देन आई विल मेक श्योर कि मैंने जो मिस्टेक्स किए पास्ट में फाइनेंशियली, और ऑब्वियसली वो वहाँ से स्लोली स्लोली करके ग्रोथ आई है. सो टुडे आई एम मेकिंग गुड 70-80 thousand विच इज सफिशिएंट फॉर मी एज अ इनकम. बट जो पुराने एक्सपेंसेस हैं, आई वांटेड टू गेट मैरिड एंड ऑल ऑफ दैट, तो मैंने सोचा ये एक अपॉर्चुनिटी स्पेस है, 6 महीना 1 साल काम कर लेता हूँ टाइम निकाल के, और थोड़ा, साइड मतलब साइड हसल हाँ सॉर्ट ऑफ चीज थी। हाँ, और थोड़ा बन जाएगा पैसा. तो वहाँ पे वो टाइम पे फ्लीट्स वगैरह ऐसे कोई ऐसा चीज़ नहीं थी. सो पीपल वर ओनिंग देयर ओन कार्स एंड ड्राइविंग इट. और अगर मैं किसी के पास से ड्राइविंग भी करता तो मुझे पता था कि यार ही वुड वांट मी टू बी अ फिक्स्ड ड्राइवर, ही वुड नॉट गिव मी अ कार फॉर अ पार्ट टाइम थिंग. तो मुझे खुद की खरीदनी थी. तो आई थॉट कि चलो ट्राई करते हैं. सो आई वेंट टू द शोरूम in Maruti, and I asked about the inquiry किया and all of that. So that time it was booming and every bank wanted to fund in this space. तो लक था, समझ लो. So आज की डेट में if that same guy goes like me goes to a bank and tells that he wants to put a car in Uber, there is a very high chance that only an NBFC with a high rate of interest of 16-18% would help me. ठीक है, that time I got a loan at a rate of 8%. Was it was the lowest in the category. You don't get the loan at 8% today also. ठीक है, सो वो टाइम समझ लो कि बस ऊपर वाले को सपोर्ट करना था या जो भी था. तो वो गाड़ी आई फर्स्ट, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी अगेन बिकॉज आई डिड नॉट हैड मनी. तो मेरे फादर से मैंने 1,000 रुपये लेके बुकिंग अमाउंट दिया था. देन द बैंकर ही गेव मी अ 95% ऑन रोड शोरूम फंडिंग. The 5% was given a discount by the company. The lady who delivered the car to me, she's again associated with us till today. ठीक है. सो वहाँ से गाड़ी ली, गाड़ी चलाई. दिन में सुबह गाड़ी चलाता था, शाम में अच्छे थोड़े बहुत पैसे बने.
एक ड्राइवर रखा, स्लोली ग्रेजुअली थिंग्स वर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. स्ट्रगल्स थे, बट ऑफ कोर्स सारे स्ट्रगल्स आपको इजी लगने लग जाते हैं जब आपके जेब में पैसे होते हैं. ठीक है, इफ यू हैव मनी एवरीथिंग इज एवरीथिंग इज लाइट. ठीक यू है. कैन मैनेज एवरीथिंग. Yeah. Money cannot buy happiness, that is for sure. Happiness is bought by supporting people, like, to be very happiness अगर आपको चाहिए ना, तो पैसे से ज्यादा आपको लोगों की लाइफ में काम आना पड़ेगा. like, you need to be that missing person in your life, ना. There is always someone you want to be, like, you want someone to be there for you in terms of your guidance, mentorship, something. ठीक है, मैं आज तक Like ढूंढ you रहा हूँ. found so many people along your journey, right? मेंटोरशिप तो हाँ, इन टर्म्स ऑफ जॉब यहाँ पे बिजनेस रिलेटेड में नहीं मिला. एंड मेंटोरशिप भी ऐसे मेंटोरशिप नहीं थी. आई विल टेल यू वन थिंग कि जितना भी किया खुद से सीखा मोस्टली. एंड पीपल, यस, दे एक्चुअली सपोर्टेड मी कि यार सस्टेन्स में दे हेल्प मी इन ऑर्डर टू डू दैट. बट ऑब्वियसली इट वाज द वर्क दैट दे वर. आप काम कर रहे हो ना, कोई भी आपको नहीं जाने देगा. इफ यू आर डूइंग योर बेस्ट एंड इफ यू आर ऑनेस्ट, इफ यू हैव इंटेग्रिटी इज द की टू सक्सेस. ठीक है, इंटेग्रिटी आज की तारीख में लोगों के अंदर नहीं है. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक डूइंग द राइट थिंग व्हेन नोबडी इज वाचिंग. वो हमें हर ऑर्गेनाइजेशन में सिखाया गया, एंड इट इज सो मच इनकलकेटेड इन अस कि आज मुझे मेरे बिजनेस में भी है ना, मेरा खुद का है, तो भी अगर मैंने 50 रुपए यहाँ पे पड़े हैं ना, आई वुड वांट दैट अकाउंट गाई को कि इसका हिसाब रख. I can take it. Nobody will ask me that question, right? But still, I want that. नहीं यार, this is something which has to have an accountability on it. आज मैं कर रहा हूँ, कल कोई भी कर लेगा. ठीक है, so it has to be a top down approach. Just खाली growth में नहीं होती है. It has to be in the integrity part also. Top down approach हर जगह. Even my kid today, he tells me कि whatever you do, I'll do the same thing. ठीक है, so you need to be very conscious of what you're doing, because they don't learn from your words, they learn from your actions. ठीक है, so kid, if you want to discipline yourself, your own kid will help you do that. ठीक है, very important, because that's how you will take it seriously, because you don't, it's a reflection of you. ठीक है, so tomorrow if you are saying that मेरा बच्चा बदतमीज है, तो समझ लो कि आप बदतमीज थे. That is what he is learning from, or maybe he is in the wrong circle. ठीक है, you need to check that out possibly. तो वैसा हुआ. फिर वहां से मैंने गाड़ी चलाई. मेरी सिस्टर ने बोला कि शी वांटेड सम मनी, सपोर्ट फॉर अ मंथली इनकम, क्योंकि उसके भी फैमिली के इश्यूज थे. सो आई टोल्ड हर ठीक है करते हैं. सो शी गेव मी लाइक फर्स्ट डीपी फॉर द सेकंड कार. वी गॉट दैट सेकंड कार ऑन बोर्ड. फिर वहां से लोगों ने देखा यार हमारी एक से दो नहीं बढ़ रही, हमारी तो एक भी नहीं चल रही है. इस बंदे ने विद इन 6 months 2 गाड़ी ली. तो एवरीबडी अराउंड मी दे स्टार्टेड टू टेल मी यार हमारी भी गाड़ी चलवा दो, एटलीस्ट गेट अस आउट ऑफ द EMI पार्ट. सो सडनली आई हैड अ फ्लड ऑफ कार्स. 2 गाड़ी से फिर बाद में गाड़ियाँ मुझे खुद से मिलने लग गई, बट दे वाज वर डीजल कार्स. So 2017 came in, diesel market crashed down, the prices of diesel soared very high, and the market converted to CNG. अब we were into losses. यार कैसे कमाएंगे, क्या करेंगे, पैसा तो बन नहीं रहा. अब आई वाज लाइक कि कैसा करना है. एंड सडनली इन माय फ्री टाइम आई वाज वाचिंग अ यूट्यूब वीडियो ऑफ विवेक बिंद्रा. तो ही यूज्ड टू कम अप, अभी तो नहीं कर रहे, बट पहले ही यूज्ड टू क्रिएट वेरी गुड बिजनेस मॉडल, लाइक ही यूज्ड टू एक्सप्लेन बिजनेस मॉडल्स फॉर डिफरेंट कंपनीज, हाउ यूज्ड टू ग्रो इन लवली वीडियोस. एवरीबडी मस्ट वॉच. लाइक की नोट्स होते थे, but those keynotes are very important. Then you need to deep dive into those. And he was suddenly talking about Indigo का business model. And I realized कि बॉस ये रोड पे इंडिगो है. आपको अगर सक्सेस होना है ना, तो आपको स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए. सारे A320 330 नियोज है उसके पास, सेम एयरक्राफ्ट है, तो मटेरियल ट्रांसफर इज इजी, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज लोअर. Then you don't need to keep searching for different things. It's one airline, one single plane, just different numbers, right? तो मेरे को समझ आ गया रोड पे इंडिगो चलानी है, समझ लो. ठीक है, दैट्स हाउ द मनी विल कम इन. एंसिलरी, वो फ्रूट बेच के पैसा कमाना है या फूड बेच के जो भी है, you have to sell the space of the car, and that is your money, like the branding and stuff like that. तो I said यार this is what I want to do. अब वहाँ से आइडिया मिल गया, and then I sold off all my diesel cars and started to buy the CNG cars. तो लोन तो मिलना नहीं था, मुझे पता था. आई नेवर अप्रोच द बैंक ऑल्सो. सो व्हाट आई डिड इज आई गॉट अ लोन ऑफ 10 लाख रुपीज फ्रॉम अ बैंक. कहीं से 5 लाख रुपए, जो भी मेरे को क्रेडिट कार्ड से लोन मिलते हैं, मैंने सारे अक्यूमुलेट कर लिए. वो अक्यूमुलेट करके आई क्रिएटेड 15-16 लाख रुपीज का पूल ऑफ मनी, एंड आई स्टार्टेड बाइंग कार्स फ्रॉम द डिस्ट्रेस्ड ओनर्स. वो टाइम पे लोग 2018, okay. 18. So 18 में I bought 5-6 cars, और फिर वहाँ से my fleet started to grow, and then I used to give 2 options to people. Either I'll pay your EMI and help you get out of debt, plus a profit,
आफ्टर सेलिंग 2 years, अभी आप 2.5 लाख में बेचो, आपकी गाड़ी 3 साल के बाद में भी 2.5 लाख में बिकेगी, बट यू विल गेट अ मंथली रिटर्न ऑन दैट. सो few people used to choose this option who trusted, like, who wanted to take that one risk. Few people, नहीं 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 यार, हमें हमारी गाड़ी बेचनी है, we don't want to take a risk and all of that. So either or. So वैसे करके मेरी 12-15 गाड़ियाँ बढ़ गई, मतलब 5 गाड़ी मैंने खरीद ली, 5 गाड़ी मुझे ऐसे रेंटेड मिल गई. सो उस तरीके से मेरा फ्लीट बड़ा हो गया, एंड आई वॉज मैनेजिंग दोज कार्स विद हेल्प ऑफ अ ड्राइवर who used to work as a part-timer employee also. फिर वहाँ से I got a call one day. Uber slashed the rates and it was very difficult for the survival part, and we never knew कि किससे बात करनी है. So I went to Uber office. I was very angry and I was like, मेरे को कुछ तो बोलना है, and I just asked him for an email address. And he said कि आपको कुछ भी बात करनी है सर, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आप ये email address पे लिखो, you will get a response. मैंने बोला यार भगा दिया, कुछ बेवकूफ़ बनाया, कुछ होगा नहीं. But still I took that thing and I sent a cold email to them that this is what it is and we are doing this. 15 गाड़ी है हमारी, we want to grow it to 50. थोड़ा सा exaggerated numbers मैंने उसको दे दिए, और आई थॉट कि इससे कुछ तो रिस्पॉन्स आना चाहिए. एंड बैक ऑफ द माइंड था कि कुछ नहीं होगा, ठीक है, देयर विल बी सो मेनी पीपल लाइक यू एंड दिस कंपनी इज $1 billion कंपनी और इनको फर्क नहीं पड़ता है. बट टू माई सरप्राइज नेक्स्ट डे आई गॉट अ ईमेल बैक दैट वी वांट टू मीट यू. एंड आई वाज लाइक यार मैंने लगता है कुछ ज़्यादा बोल दिया, एंड दे माइट ask me to, like, take off my cars and everything, so you don't know what is going to happen. So I went to their office and they said we tracked you down and you have done a really good job, and would you be interested in going to 100 cars? I said यार 15 गाड़ी नहीं चल पा रही बराबर से, आप 100 की बात कर रहे हो, लेट्स टॉक रियलिस्टिक. आई वाज थिंकिंग, मेरे को लग रहा था दे वर जस्ट जोकिंग अराउंड. सो आई सेड आई डोंट हैव मनी एंड आई एम एन एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी गाड़ियाँ इस तरीके से चलती हैं, ऑल ऑफ दैट. सो ही सेड कि see, we are very serious about it. We will help you with the sourcing of money. We will help you establish your fleet. Will you be able to? Will you be doing it? Like, do you think will you be able to handle this many cars? So मैंने रिचर्ड ब्रांसन का वो देखा था कि if you get an opportunity, say yes to it and then learn it later. ठीक है. And I said yes, I'll do it. ठीक है. बट मैंने उनको एक ही चीज़ बोला, देखो यार मैं जॉब छोड़ के आ रहा हूँ, तो बस धोखा नहीं करना मेरे साथ. डोंट चीट मी. ठीक है. बिकॉज आई हैव नथिंग, मतलब फॉर मी अ पर्सन लाइक मी, आई कैन नॉट अफोर्ड इट. ठीक है. तो दे सेड नहीं नहीं नहीं, वी आर वेरी सीरियस एंड वी विल नॉट डू दैट. ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट. सो आई वेंट, आई टोल्ड, बट स्टिल बैक ऑफ द माइंड मैंने अपने आप को सेफ रखा था. सो आई वेंट एंड आई स्पोक टू माई बॉस मनीष शर्मा. उनको बोला सर ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटी आई है, व्हाट शुड आई डू. तो उन्होंने बोला कि यू शुड ट्राई इट, बट ट्राई नॉट टू टेक अ लॉट ऑफ डेट ऑन योर सेल्फ. ठीक है, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी अ रिस्की प्लेस. व्हाट यू आर डूइंग बाय accumulating cars from others, continue to do that and scale as much as you want to, because today you're making 70,000-80,000 over here, maybe and I was almost making double then in that business. Okay. But I still working here because I knew this is a consistency work. So I said कि सर अगर मैं जाता हूँ and if I am not able to sustain over there, will I get my job back? So he said absolutely, and 99% you will not come back. That is, I'm so much sure of it. ठीक है. So you gonna grow, that much we know. तो उन्होंने मेरे को बहुत होप दिया, एंड ही सेड कि फिर मैंने वहाँ से ज्वाइन किया. देन ड्यूरिंग दैट टाइम वी लॉस्ट आवर बेबी. जो माय वाइफ वाज प्रेग्नेंट, तो वी लॉस्ट आवर बेबी एंड इट वाज लाइक यार ये काम के चक्कर में ऐसे हो गया. इट वाज जस्ट अ डिले ऑफ अ डे. आई वाज बाइंग, और कुछ तो कर रहा था मैं किसी चीज़ में, आई वाज स्टक. maybe I was purchasing a car or maybe a driver had a issue and something, and I told her I'll go to the hospital tomorrow. वो एक दिन के डिले में वी लॉस्ट हिम. ठीक है. सो आइदर माई वाइफ वुड हैव लॉस्ट हर लाइफ और द किड वुड हैव लॉस्ट हर लाइफ. सो किड टुक दैट एंटायर, डॉक्टर सेड दैट दिस किड सेव्ड योर वाइफ्स लाइफ. ठीक है. अदरवाइज बोथ ऑफ, अगर कल भी हम ऑपरेट करते हैं, देयर वाज अ हाई चांसेस दैट बोथ ऑफ देम वुड हैव डाइड. तो आई हैड अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम बिकॉज ही डेफिनेटली एज अ चाइल्ड, उसको तो कुछ भी नहीं पता था यार, मतलब ही टुक दैट थिंग ऑन हिम एंड ही पास्ड अवे. सो आप जब तक फादर नहीं बनते हो ना, आपको नहीं पता होता है फीलिंग, टू बी वेरी. और मुझे इतना कुछ लगाव भी नहीं था. व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट आई वाज लाइक हाँ प्रेग्नेंट है यार, ठीक है. बट व्हेन आई एक्चुअली हेल्ड हिम, आपको ना तब फीलिंग आती है. बच्चा जब तक माँ के पेट में होता है ना, आपको नहीं पता होता है कि क्या है क्या नहीं. इट इज अ नॉर्मल थिंग फॉर यू. फॉर हर इट इज मे बी, we don't know, but when as a father, the day the doctor gives the kid in your hand, automatically वो एक magical feeling है, and you get that sense of responsibilities immediate आ जाती है, and you want to live your life for them. ठीक है. उससे पहले ना आप सारे मजे कर रहे होते हो, सब कुछ कर रहे होते हो.
ठीक है, और 1 घंटे में ना, मतलब एक रात में आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। ठीक है, तो वैसे हो गया। एंड आई सॉ हिम एंड आई वाज लाइक शिट, व्हाट आई लॉस्ट इज समथिंग, व्हेन यू लूज इट देन यू गेट टू नो द वैल्यू ऑफ इट, लाइक तो वहां पे जाके आई वांटेड हिम टू स्टे अलाइव फॉर एवर, बिकॉज आई थॉट इट वॉज माई मिस्टेक एंड आई लॉस्ट हिम। बिकॉज अगर मैं एक दिन पहले आता, जो भी वो आदमी को, इंसान को ऐसा लगता है हमेशा, देन आई विश आई कुड हैव डन दैट, बट देन यू नीड टू बी वेरी, वहां से आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई लर्न द लेसन दैट यू नीड टू बी like very everything is not money, ठीक है, and sometimes you need to prioritize other things in life beyond money, ठीक है। So that is how I started to focus on my personal family life and all of that. वहाँ से I became a more of a responsible uh, person, ठीक है, more disciplined, more family oriented. Before that I was not. Before that I was like I was working for money, I was making money, things were going fine and all of that. तो वो एक था कि यार चल चेंजिंग रहा है। पॉइंट हाँ, आया। यहाँ से I got a little more serious in my life, and then I started Jibs India as a company. फिर कोविड आ गया तो वी वर नॉट श्योर क्या होगा क्या नहीं होगा, बट सडनली उबर केम इन अगेन, दे सपोर्टेड अस, दे हेल्प्ड अस बाय गेटिंग आवर कार्स ऑन रोड फॉर इमरजेंसी सर्विस एंड स्टफ लाइक दैट। सो वहाँ से पैसा बना, स्लोली ग्रेजुअली थिंग्स वर गोइंग फाइन। ऑर्गेनाइजेशन में सारे नए लोग थे, मेरा इतना कोई रैपो नहीं था किसी के साथ में। सो आई टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट वाज ऑलरेडी, मतलब आप समझ लो कि बर्निंग ट्रेन चल रही है, ठीक है। देयर इज द एंटायर बोगी इज बर्निंग एंड यू आर रनिंग अ बिजनेस एंड इट इज, यू आर इन अ डेट, यू हैव वेरी लो कैपिटल साइड, एंड अल्लाह ने मुझे हमेशा ही सस्टेन किया है। तो यूर ऑल्सो आई हैव सीन वर्स देन दिस। द ओनली थिंग वाज this time I had a kid, I had a wife, my parents were much older, ठीक है, and I had debt of 2.5 lakhs when I started this business. Now I have a debt of fucking 6 crores, ठीक है। सो कर्जे से निकलने गया था और कर्जे में चला गया हूँ, एंड ओनली थिंग वाज मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। आई नो मैं नौकरी करके भी कर लूंगा, मैंने चाय बेची है रोड पे, तो मेरे को टेंशन नहीं है, मेरे को वो आई एम नॉट वरीड अबाउट, आई एम जस्ट अबाउट वरीड अबाउट रीपेइंग द मनी टू द बैंक्स विच आई हैव ओन टू देम। बस वही डर था और कुछ भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि घर कैसे चलेगा, वो कैसे चलेगा, यार हम इससे भी छोटे घर में रहते थे, तो उस सब तो ठीक था, वापिस बन जाता है लाइफ में। तो वहां से आई वेंट इनटू अ बिग डिप्रेशन, and that depression taught me a lot of things. I became more spiritual, I became more closer to helping, Allah, and all of that happened. फिर I started to pray every night. So ऐसा टाइम था that I was thinking every morning कि ना I don't want to get up, I should die. That was the whole thing. I was searching for things the easiest way to die. ठीक है, that was the whole search engine that I was going through. I have notes in my phone, if you want to see. So these are the notes I have. So these are the notes that I was writing through. So yeah. So it was like more or less this was happening, and suddenly my wife she got me a passport. मेरा passport renew नहीं था. She took me to the passport center and she got me a passport and she said कि you go for Umrah, and I said कि अकेले कैसे होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, and I just called the guy and he said कि there is one ticket available and you go. So I said okay. I prayed, I cried a lot, वैसा हुआ, and then I came back and then I saw my kid, Shayan, who was there. तो आई थॉट कि यार नहीं यार इसके लिए करना है, ठीक है, इसकी कोई गलती ही नहीं है, ठीक है। एंड देन माई पेरेंट्स कौन उनका ख्याल रखेगा इफ समथिंग हैपेंस टू मी, ऑल ऑफ दैट। सो यहाँ पे तो कुछ मिस्टेक ही नहीं, बल्कि इट विल गेट इवन मोर वर्स फॉर देम। And then I started to gain strength, courage, and I spoke to the people in my organization who were there, and they really, really helped me. I cannot thank them enough. I recently gifted them a car also, two people, Vikar and Zishan. They took over the responsibility with my wife and they hold it back, Saddam. So my entire team, they saw me going down in a drain. They saw me getting panic attacks, and they said, "Ki, we will take this organization forward." ठीक है, एंड इट इज नॉट अबाउट हमें कुछ मिले नहीं मिले, बट इसको जिताना है। तो वहां जाके आई सॉ एंड दे एक्चुअली टुक ओवर, हैंडल्ड इट। टुडे मैं बोलता हूँ कि 500 गाड़ी में मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन जस्ट 20%, आई फील 80% इज माई टीम, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो माई पीपल रियली रियली टुक ओवर, दे हेल्प मी एंड दे स्टार्टेड doing whatever possible they can in order to get back us on the feet. And today we are here, alhamdulillah, and today they are like, sir, आपका सपना नहीं रहा, it's not your vision anymore, it's our vision, ठीक है। So I want
to be a that person everybody's life which I was missing out on. Number one. Number two, मुझे लगता है कि यार लाइफ में पैसा ही कमाना है. बड़े हो गए, एक बार जॉब लग गई उसके बाद में. सो वी हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी वेयर वी कैन क्रिएट समथिंग बिग. ठीक है. ऑफ कोर्स नथिंग कम्स आउट ऑफ हार्ड वर्क से. कुछ हार्ड वर्क इज द सिंपल थिंग बट इट्स जस्ट नॉट हार्ड वर्क. आपको हार्ड वर्क भी चाहिए, स्ट्रैटेजी भी चाहिए, आपको बहुत सी चीज़ें चाहिए. एंड यू नीड टू बी स्किलफुल रादर देन वेस्टिंग योर टाइम इन टू लाइक with your friends because they don't, not everyone is your friend. ठीक है. To be very, I learned that. ठीक है. So अकेले रहो चलेगा उतना ही. Your best friend is going to be your wife. If you have a good wife, you have 150% of the battle. ठीक है. Today Mukesh Ambani is because of Neeta Ambani and Ratan Tata is because he doesn't have a wife. ठीक है. Possibly so. It's both दोनों of तरह them. हाँ, दोनों में like you need to have a right woman who, you don't need a woman who will bring food to you on the table. You don't need to get married who can cook food, take care of your family. She should be your best friend, one you can share things with. You don't need to get a response every time. It is just that you want someone to listen to, someone you can comfort in, to be very honest. And he's who is there, who believes in you more than you believe in yourself. That is very important. If you have that kind of a partner, you have won the battle. ठीक है. देन द वॉर इज इजी. ठीक है. यू विल विन और लूज, यू आर विनर. ठीक है. दुनिया के सामने आप जीतो या हारो, आप घर में तो आप जीत रहे हो. ठीक है. और कहीं ना कहीं आपको एक जगह तो आप जीत रहे हो ना. फैमिली इज इंपॉर्टेंट क्योंकि उसी लिए तो सब कुछ है. उसी के एवरीथिंग लिए कर भी रहे इज, हो या आप, राइट? करेक्ट. सो वो चीज़ है. सो दे डिजर्व द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग इन लाइफ दैट आई डू. सो मोर और लेस आई वांट टू लाइक गिव देम वॉट एवर दे विश फॉर. दे नेवर थॉट ऑफ इट. आई वांट टू डू दैट. सो वैसा है. तो आई एम जस्ट डूइंग इट. देयर इज नो एजेंडा एज सच कि यार मुझे अंबानी बनना है या अडानी बनना है. ऐसा कुछ नहीं है. बन गए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो भी कोई बात नहीं. लाइफ इज गुड. एंजॉय इट एवरी डे एंड बी फॉर अराउंड फॉर द पीपल. आप लोअर ग्रेड लोगों को जितना सपोर्ट करोगे ना, उतना आप लाइफ में आगे जाओगे. बिकॉज आपको लगता है कि आप बड़े आदमी से कनेक्ट बनाओगे ना तो आप आगे जाओगे. बड़ा आदमी आपका हाथ ऐसे नहीं पकड़ता जब तक गरीबों की दुआएं नहीं होती. वो आपको ढूंढते हुए आएगा. ठीक है. तो आपको ना लोगों के लिए करना है. वो दुआएं काम आती है, पैसा नहीं काम आता लाइफ में. एवरीथिंग यू शुड डू समथिंग वेयर पीपल योर एंड तो improving somebody's life in yeah, whatever yeah, way you can, everything. right? Like you can just be, and not one time. Don't give them money, one time money. Give them a consistent opportunity to. उसमें से 10 में से 8 लोग है ना खुश हो जाएंगे, 2 लोग को आदत होगी. That you cannot do. 80-20 rule applies in all aspects of life, to be very honest. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो कंपनी का नाम जिब्स इंडिया सिस्टम ही क्यों रखा हमने? So the idea was wanted to keep a name. और जैसे जबरान के लिए मैंने आपको कहा कि when he passed away, so when I was burying him, so मैंने उसको एक वादा किया था and I'll keep you alive and somehow you will be responsible for helping. We want to, like, as a father and son, ठीक है, we will create something for the people around us. ठीक है. तो इसीलिए आई वांटेड, आई बिकॉज नॉर्मली क्या ना हम भूल जाते हैं. सो आई रिसेंटली दिसंबर में आई लॉस्ट माई डॉटर ऑल्सो इन द सिमिलर सिनेरियो. हर नेम वॉज आयरा. सो विद जिब्रान वी आर मेकिंग मनी and helping people also to make money. With Aira, we want to create a foundation because in the last 3 years of my time, I saw a lot of people coming to me and asking for help and support for hospitalization, education, and all of that. So I thought it's a responsibility to giving back to the society. Just not while यहाँ पे टैक्सी चला के, so टैक्सी ड्राइवर पैसा कमा रहा है, but there is one crowd who cannot do anything for you, but that also need help. ठीक है. और इफ वी हैव अ मैसिव लेवल ऑफ क्राउड, सो हम आज आपको बता रहे हैं हम 5 रुपए से ना साल के 72 लाख जमा करते हैं. ठीक है. वी जस्ट चार्ज 5 रुपीज एवरी डे एंड वी सेव 72 lakhs एनुअली, विच वी वांट टू स्पेंड on the underlying people who are below poverty line or people who are actually needing help and support. तो वो चीज़ के लिए we are trying to create something like where we can help a lot of people, education, hospital, healthcare and stuff like that. And we don't want anything in return. ठीक है. We just want कि अगर आप पैसा दे सकते हो, so it is good return. It will not, if you are not able to repay it, there is no hard and fast rule. If you give it back, it will be helping someone, right? So that is the whole idea, to create Aira Foundation. We named her Aira, so we wanted to create Aira. So usko abhi, that is the whole thing. So Jibran, Aira, and then I have a son Shayan who is with us, Touchwood. So for him, we have created Masha Mobility, which is into used car selling space. Okay. So okay. for every kid that I have You have a company.
named after him, Yeah. and it's a very good initiative, right? The IRA Foundation Yeah. initiative. I think क्या होता है कि जब हम सक्सेस मिलने लगते हैं तो हम ये सब चीज़ें भूल जाते हैं, कहीं ना हाँ. कहीं होता जाता है लोग, बट आप नहीं भूले और आप कुछ कर रहे हो एक्चुअल में टू हेल्प पीपल, माइंड ब्लोइंग, राइट? हाउ डू यू अर्न मनी विद जिप्स इंडिया सिस्टम? आई मीन व्हाट्स द मॉडल, राइट? पीपल वांट टू नो. So basically, we rent out cars, lease out cars to the drivers. We purchase the cars and we lease out them to drivers at an affordable pricing as much as we can. Right. And apart from that, we take the entire risk away from the driver's side of like renewal of papers, accidents, maintenance cost, and all of that, which burdens the driver and it kills their earning. Okay? Because 12 hours of drive and after that you face other issues. It's not an easy thing. एंड लेट्स टॉक अबाउट सम नंबर्स. अभी कंपनी मतलब क्या टर्नओवर करा लास्ट ईयर और अभी क्या एम कर रहे हैं इस साल के लिए? So I'll tell you the turnover. Our idea is to grow 2x, simple 2x formula. 2020 we did 3 crores. 2021 we did 3 crores. Then 2022 we did 6 crores. 2023 we did 18. Now last year we did 36. Now we are targeting at 72. Stretch is 100. 100 is something which I want to do is because it's for my personal satisfaction. So I just want to reach 100 as soon as possible. Any person who influences you? Right now, I mean, can be 2-3 persons also. So yeah. So influencing as a new age companies in India, as I said, in food industry, food space, I have Zomato. This is my favorite brand. Then I have Uber as Travis Kalanick as a founder. He was aggressive, you see his stories, super pumped and all of that. Then I have Mamaearth in the retail, D2C space. Then if you see in the electric space, it's what we call Blue Smart, Zip. Zip Electric, correct, right? Zip Electric. So from nowhere. Blue Smart, obviously, they were from a good background. Zip Electric came from nowhere, and they are growing. So it's exceptional company. What is work-life balance to you? There's nothing as such. Yeah, you need to understand the priorities. Okay? Sometimes work is important. Sometimes family is important. So for me, I work 26 days a week. And then 26 days a month, and 26 days a month, and then 4 days I go off. So whenever my work, so I don't have I have a car. In that I have a bag always packed. Okay, for traveling. Yeah. So whenever whichever week I feel is light for me, I just call my wife or my employees who have done really well. I just tell them, go get your bags packed, and then we go. So we do spontaneous travel. So we don't know where we are going. Okay? We sit in the car and then we do chit. Okay? And we open within 200 kilometers. Jo bhi nikla, we go there. Wow. Sort of retreat sort of type, Yeah. right? So you don't know in the morning that you're going to be traveling in the evening. Okay? So that's only I know it. Where I'm going, only I know it. Nobody knows it. So that's something which we do, and we have done it a lot of times, and that is something which keeps our team also motivated to do. They always make sure that we are always on the lighter note, so that they know okay, kabhi bhi hai na, if things are good na. So my mood is also depends on the. So मेरा mood meter है ना मेरे bank account से related है. ठीक है. So if I'm making good money, I'm in a good mood. Good mood, right. Okay. Advice which you would give your 18-year-old self? Don't worry. Things will get fine. Simple. Your future is not in your control. So how do you enjoy life? I enjoyed every day as it comes in, to be very honest. As I said, I only worry about the debt that I have. Okay, because that's something, and of course you need to worry about it. If you don't worry about it, then you will not be taking it seriously. Apart from that, I enjoy my life. I love cars. Okay, so I love super powerful cars. Okay. Advice for young entrepreneurs. Patience is the key, and getting the right people on board. Don't save money. Okay, give money to the right people and appreciate that work, because you cannot do everything. Okay. And the lighter note you can get by spending, अगर मुझे लग रहा है मैं 10,000 रुपए देके अपना 2 घंटा बचा सकता हूँ ना, 10,000 is cheap for me. Because I know where I'm going to use my 2 hours and I'm going to make 1 lakh rupees. So that is very important. So this is the last question. Where do you see yourself in the next 10 years? I don't know. I really don't know, because 10 years before, if somebody would have told me that you're going to be running a company worth 200 crores, I would have joked it and I would said, yaar, kaun sa hai mujhe bhi de. Because that's something, right? So that is what I would say. I don't know. So I live
life as I said, no, it comes in full circle or exceptional. I don't even know whether I'll be there in the next 10 years, right? Because today I see young people passing away like that. Like, you know, it's a thing. So I'm not. So I think 3 years quarter सोचते हैं, 6 महीना सोचते हैं. मैं तो साल भी नहीं सोचता. ठीक है. So you should have that aspiration कि यार continue करना है, grow करना है, but don't make big plans, because if they fail, then so take one day at a time. That's the right way to grow, because that is where your happiness meter will be higher. That is where your expectations with yourself should be higher. But if you are overburdening yourself with that, then you are going to be nowhere. Okay, so keep it light. To be very honest, I know there are highs and lows. So lows में ऐसे लोगों से मिलो जो आपको kick देते हो. ठीक है, and mostly I would say travel, possibly. Travel is the key to everything. Okay, so thank you so much for joining us. बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. Same here. बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी रही आपकी, और आई होप ऑडियंस सीखे इन सारी चीज़ों से, क्योंकि आपने आई थिंक फ्रेमवर्क दे दिया पूरा. इसीलिए मैंने इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं पूछा आपसे कि फ्रेमवर्क क्या है सक्सेस, क्योंकि आपकी पूरी स्टोरी ही एक फ्रेमवर्क है, राइट? Right. सो थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग. Thank you.